Rahman. So let's start. Bismillah again. So today's session we will start, but before that, as we always do, we will do a recap of the first two sessions that I did. There were three sessions altogether from Kind Deed, and I did two. Previous session was by Dr. Asra, Alhamdulillah. And Jazakallah Khair to Kind Deed Foundation for organizing all the programs, and to Paradigm, Alhamdulillah, for helping us with all the background work. Like they have provided us with the Zoom link and with the feedback forms, with the recordings, with mashallah, a lot of work that Paradigm has helped us with. In the first session, we did purpose of you becoming a parent. And in a very, very quick nutshell, we understood that parenting is not the purpose. Parenting is a responsibility. Purpose is from the moment you understand the purpose of your existence. So let us say that from the day Allah has started your records, that is the day when you should, inshallah, also understand what is your purpose of being here on this earth. And wo hoga kaise? Wo through the parents it will happen, because the parents, right from very young age, to keep telling the children that Allah has created you for a purpose, and it is you will have to find some route to reach that purpose. So our first session was all about purpose, why and how. Why are we here? And how should we reach our purpose as parents? And we also spoke on this point that people who are not parents, or who are not married, or who are very old, they still have a purpose. So the purpose remains the same. The responsibilities keep changing. And when you get married, you have a different responsibility. And when you have children, the responsibility adds. Okay, so ये बहुत अहम पॉइंट है जो बार बार हमको अपने सेशंस में दोहराना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम अभी आगे के सेशंस लेंगे, ये क्यों और कैसे, ये दो चीजों पर डिपेंड होगा. In the second session, we did how do we use Asma al-Husna in our children's tarbiyah. तो सिफात जो है अल्लाह ताला की, उसको लेते हुए हम कैसे बच्चों की तरबियत करें. तो उसमें सबसे पहला लेसन तो ये था कि पहले हम खुद अल्लाह ताला को जानें. अल्लाह ताला की सिफात के जरिए, जो अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया है, उसके जरिए हम पहचानें कि अल्लाह ताला कौन है. तो अल्लाह गनी है, अल्लाह हकीम है, अल्लाह अल-बसीर है. तो अल्लाह ताला को पहचानने में हमको आसानी होती है जब हम अस्माल हुस्ना को बहुत अच्छे से समझते हैं. तो पहला स्टेज है कि एज पेरेंट्स आपको खुद बहुत अच्छी तरीके से अस्माल हुस्ना को समझना होगा, फिर उस पर अमल करना होगा. अमल करते हुए ये जानना होगा कि मैं क्यों अमल कर रही हूँ, क्योंकि ये अल्लाह की सिफात है, और इसमें से अल्लाह ताला ने हमें भी, इंसान में भी अल्लाह की ही सिफात डाली है. तो जैसे हम भी रहम करते हैं, हम भी अदल करते हैं, तो ये अल्लाह ताला की ही सिफात है जो मैं अमल में ला रही हूँ. सो दैट अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर. एंड देन द अदर पॉइंट वी डिस्कस्ड वाज दैट एग्जिबिट इट. आप बच्चे को वो उर्दू में क्या कहते हैं, दिखाएं, नुमाया करें, isn't it? Have to exhibit it to the children that how it should be done. So if you are merciful, then आप बच्चे को बताएं कि आप क्यों merciful हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत merciful है. इस वजह से मैं मर्सीफुल हूँ. अगर मैं बिल्ली को खाना दे रही हूँ, कुत्ते को रोटी दे रही हूँ, तो मैं इस वजह से कर रही हूँ. और ये कब तक करना होगा? जब तक बच्चा आपके गोद में है. जैसे कि 5 साल तक बच्चा आपके ही इर्द गिर्द रहता है, तो उसको बता बता कर आप ये अमल दिखाएं कि ये आप इस वजह से कर रही हैं. उसके बाद ऐसा स्टेज आता है जहां पर बच्चा खुद उसको अमल में लाएगा. और जब आप उसकी तारीफ कर रही हैं या जब उसकी इस्लाह कर रही हैं, तो आप सिफात को लेते हुए ही करेंगी. और ये सब तभी मुमकिन होगा जब आप खुद इंशाल्लाह
सिफात को इतनी अच्छी तरीके से जानेंगी और उसको अमल में लाएंगी. तो दिस वाज लास्ट सेशन. And today's, inshallah. By the way, there were few after the sessions. There were a few points raised. They said, बोलना आसान है, नहीं होता, ससुराल में मुमकिन नहीं है, ये वाली जनरेशन बहुत मुश्किल वाली है, और ये सब रियल लाइफ में नहीं होगा, ये मकसद और फला. या फिर हस्बैंड कहेंगे कि बीवी को समझ नहीं है, या फिर बीवी कहेगी हस्बैंड अलाउ नहीं करते हैं. ओके. ये सब universal problems हैं, right? Imagine if, I mean, we all have real stories from people. जैसे कोई इस्लाम होता है, ये सोच कि इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है, जो कि है. तो वो इस्लाम में दाखिल होते हैं और सोचते हैं कि अब मेरी लाइफ सेट हो गई, और फिर वो किसी मुसलमान से शादी करते हैं ये सोचते हुए कि मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी, सहारा मिलेगा, क्योंकि ये तो पैदाइशी दिन में पैदा हुआ है. And they have children, but it becomes so difficult because the new Muslim, the person who has entered Islam, knows it has to be this way. And जो अदर मुस्लिम है, उसके कल्चर्स होंगे, उसके फैमिली प्रैक्टिसेस होंगे, उसकी खुद हैबिट्स होंगी, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी इस्लामी अमल पर रोक लगाएगा या लगाएगी, जो भी है. सो इट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जो इश्यूज आएंगे वो पूरे दुनिया में हर कोने, जमीन के हर टुकड़े में आएंगे. कभी वो सास ससुर की शक्ल में आएंगे, कभी वो हस्बैंड या वाइफ की शक्ल में आएंगे, कभी सोसाइटी की शक्ल में आएंगे, कभी खुद की नफ्स के शक्ल में आएंगे. But then the point is that how much have you understood what you have to do? Have you understood that this is my responsibility and I need to execute it in this manner? If you have understood, and if there are outside forces that make it difficult for you to bring it in practice, then alhamdulillah, Allah will reward you for that. But यहाँ मसला ये हो रहा है कि हमारा माइंडसेट ही बना हुआ है, हम खुद पहले से ये माइंडसेट में चल रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा. तो अब इसके बाद आपको कौन कुछ समझा सकेगा? तो हमको जरूरी है कि पहले हम फर्स्ट सेशन में जो वाई वाला था उसको बहुत क्लियर करें, तब इंशाल्लाह ताला ये हाउ वाली चीजें सब विल फॉल इन प्लेस. एंड अल्लाह इज टू आस्क यू कि ये बच्चे उठकर नमाज क्यों नहीं पढ़ा. अल्लाह विल आस्क यू कि आपने इसको नमाज के बारे में बताया क्या, आपने उठाया क्या, और आप डिड यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन द हाउस विच encouraged him to get up for namaz. Okay, so जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत होते हैं, तो फिर हम क्योंकि हम इतने रिजल्ट देख चुके हैं अपने लाइफ में, एक्सपीरियंस में, जैसे बच्चा नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, तो वो फिर हम अपना बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं कि ये नहीं करेगा. किसी ने फ्यूचर नहीं देखा. So be very careful in what you say about what the future holds. Okay, so make an intention, inshallah ta'ala, have a plan, try to execute, and after that Allah knows best and he will reward you for whatever it is. So today's topic is about education, right? Alhamdulillah. If I have to ask you, are you educated? So there are people here who might say that yes, ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पर बोलेगा कि I am not educated. किसी ने इंटर किया है, किसी ने कुछ ना कुछ. तो okay. Now, how educated are you? So from this list, you might fall in some bracket. So either you have done masters, you have done PhDs, you have done at least diploma. कहीं ना कहीं तो you have done something, isn't it? Alhamdulillah. Now, आपका जो आपने जितने साल इस पढ़ाई में लगाए, how has it empowered you? आपको इससे कैसे ताकत मिली? एंड ये आपके कहीं पर अगर काम आए तो कैसे आएगा? आप ये एजुकेशन को लेकर क्या करने वाली हैं? Okay, so the two things, if you're educated, how has it empowered you?
and what are you going to do with education? ये दो सवाल हैं. For some people, for example, if there are some doctors, it's going to be very easy. They will say that I am going to treat humans. I'm going to, so for some people, the answer is quite straightforward. And for some people, they'll have to think a little while. So keep these two questions in mind. We will come back to it. I do not want an answer, but you should have an answer to this, inshallah, okay? Now, these people, we all studied about them in school. Would you call them educated? If you want to write the message in the chat box, or the answer in the chat box, it's fine. If not, that's also fine. It's just food for thought. Okay, I don't really need answers, yes or no or whatever. Now, what about these people? These might be our great grandparents, because this is the picture from India. Were these people educated? Okay. And are these people educated? Okay. All right. Right. Thank you, all of you, whoever answered in the chat box. Right. So most of you have said, yes, these people were educated. Alhamdulillah. What is education? Education is the process of learning. कहाँ से हम लर्न करते हैं? हम अतराफ की जो हमारी जो हालात हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट हैं, जो इश्यूज हैं, उसके बेसिस पे हम सीखते हैं. लर्निंग को एजुकेशन कह सकते हैं, right? But now education has a very different meaning. So people will be called uneducated if they haven't gone to a school, if they haven't gone to a college. So उनको हम uneducated वाले लिस्ट में डालेंगे, और educated वही होते हैं जो कॉलेज पर डिग्री हासिल करते हैं ना. So would you agree with this? Even though you might say no, I don't agree, but then हमारा mindset कैसा है? हम जब किसी को देखते हैं जो इंग्लिश में नहीं बात कर पा रहा, या बहुत अच्छे से बात नहीं कर पा रहा, या अपने टाइटल्स नहीं लगे हुए हैं, तो हम उनको जाहिर है हम कहेंगे कि वो अनएजुकेटेड है. सो ये एजुकेशन डेफिनेशन जो वी हैव क्रिएटेड, वी नीड टू थिंक ऑन इट. Okay. Now, as parents, mashallah, all of you who are here as parents, as grandparents, whoever you are, mashallah, you work hard. Okay. And the father, mashallah, strives hard. Sometimes even the mothers are joining in. That's a different discussion. Is it really required or not required? So you people, mashallah, you have best intentions for your children, and you want the best of schools, and you look around for the best facilities a school can provide. And I have seen parents बेचारे इतने उनकी फिक्र होती है कि आपके स्कूल में ये होगा ना, आपके स्कूल में क्लीन टॉयलेट्स है ना, आपके स्कूल में आया लेकर जाएगी ना, आपके स्कूल में बच्चा अगर टिफिन नहीं खत्म करता है तो आप लोग थोड़ा ख्याल करेंगे ना. ओके. तो आप लोग माशाल्लाह इतने फिक्रमंद होते हैं अपने बच्चे के एजुकेशन को लेकर, एंड फिर आपको स्कूल्स भी मिलते हैं, एंड यू मेक अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस. ये सब स्कूल बिल्डिंग के पिक्चर्स हैं. तो कभी आपको बड़ा स्कूल चाहिए होता है तो आप लोग माशाल्लाह अपना घर बदल देते हैं, लोकेलिटी बदलते हैं. जहाँ पे आपके दोस्त एंड रिलेटिव्स थे वो छोड़कर आप कहीं बहुत दूर चले जाते हैं, आउटस्कर्ट्स पर. या फिर आप बच्चे को तकलीफ ना हो इस वजह से करीब का स्कूल लेते हैं जो बहुत बगल के गली में है या कुछ है. So whatever it is, you have made compromises for the ease of your child's education, or because you have some expectations from the school, है ना? तो and थोड़े schools, anyways, we will not discuss about schools, but we'll only talk about your efforts, your
pain and alhamdulillah, your trials in finding the best for your child. तो आप फर्ज करें जो भी आप स्कूल में अपने बच्चे को डाल रहे हैं, वहां का कोई करिकुलम होगा विच यू विल फॉलो, you have to follow, and you cannot have a say in it. आप उसमें मदाखलत नहीं कर सकते. उनका करिकुलम होगा, उनका सिलेबस होगा जो आप फॉलो करते हैं. फिर उसके बाद उनका एक यूनिफॉर्म होगा, उनका एक डेज रूटीन होगा जो आप फॉलो करते हैं. उसमें भी आप इंटरफियर नहीं कर सकते. So they will decide how the day starts, when the day will start. Some schools start at 7:30, some schools start at 8:45. So it's up to them, and then you follow it. They have a timetable, and then you follow it, whether you like it or not, whether you want to give some suggestions, you follow. है ना? तो ये टाइम टेबल को थोड़ा सा गौर से देख लें कि इसमें क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम फिर इस पॉइंट पर आएंगे हम. आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन, बट आप लोग खुद एक नजर डाल लें कि टाइम टेबल में क्या है. ठीक, तो आप हर चीज फॉलो करते हैं. आजकल तो स्कूल्स वाले अपने खुद नोटबुक्स भी देते हैं. यू आर ओके विद दैट एज वेल, एंड दिस इज from a notebook, a recent, just this year's notebook, okay? You're okay with that? ये सब करने के बावजूद फिर आप बच्चों को ट्यूशन क्लास भेजते हैं, जहां पर ट्यूशन की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी होती है, ट्यूशन लिखा होता है, फिर भी आप भेजते हैं. व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ट्यूशन? इफ यू नो, गुड, well done, star. If you do not know, then this is the wrong spelling. So हम कितने boards नहीं देखते हैं जहां पे ट्यूशन classes लिखे हुए होते हैं, and then we still send the child. So why do we do that? Because we are not satisfied with the child's education. There's something missing. There's something still missing. So are you okay with what you selected, the compromises that you made? You moved your residence, or you selected a school and then you sent him for extra tuitions. Why are you not satisfied? आप अगर मैं if we open the discussion, every parent has something to say about the school that the child goes to. If not this year, then the next year you'll have a complaint, isn't it? Because the school, in spite of trying the best, they will fail in certain areas. And as parents, because you want the best for your child, you will find things that are not to your satisfaction. So the schools are not doing everything. You are not happy. Something is missing. And now what is that missing? Do you want to tell me what is missing? All those who wrote the spelling of tuition, well done. Good. What does Islam say about education? हम सब अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि पहली आयत जो नाजिल हुई थी वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, read, you know. So Muslims understand that there is a lot of importance on education. But what is that education? और जब इक़रा अगर यहाँ पर माशाल्लाह ग्रुप में कोई होंगे who have a very good understanding about the Quranic ayah, when Allah sent the ayah, Iqra bismi rabbikal ladhi, was it only for Muhammad sallallahu alaihi wasallam? I mean, at that moment, yes. But then उसके बाद जब हम पढ़ते हैं वो, तो हम क्या चीज पढ़ें? What should we read? Okay, this is something that we all need. Jibreel alayhi salam आए थे, so he brought the wahi, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam was commanded to read in the name of his Lord. Now, when we are reciting Quran, how does this ayah apply to us? Okay. So in going back to education, does it only fulfill these two things, that education means going to a good school and at the end of your education, you should get a good job? No. So education doesn't mean that
I mean, the end goal is not job. The end goal is to be more informed, to be more learned about things that are around you. So in Islam, there are two types of knowledge, one that is beneficial and one that is not beneficial. है ना? तो इसमें हदीस भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि या अल्लाह ताला मुझे वो इल्म दीजिए जो मेरे लिए फायदेमंद हो, जिससे नफा हो। वो इल्म मत दीजिए जिसमें मुझे कोई फायदा ना हो। तो ये दुआ भी है। तो ये हम जानते हैं कि हम हमारे लिए एवरीथिंग दैट इज बेनिफिशियल इज नॉलेज फॉर अस। कायनात में जितनी भी चीज है, इफ इट इज नॉट गोइंग अगेंस्ट अल्लाह's ruling, if it doesn't go Allah's commands, then it is beneficial for us. If it goes against, for example, आप कह लें कि अगर मैजिक है, ओके, मैजिक कोर्सेस होते हैं, तो क्या हमारे बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? इट्स नॉट बेनिफिशियल टू अस। इट्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी, many people do that। आजकल तो इतने उसके कोर्सेस हमको देखने को मिलते हैं इंटरनेट पर। इट्स नॉट बेनिफिशियल। सो एनीथिंग दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस, दैट इज व्हाट वी हैव टू इंशाल्लाह ताला फॉलो। तो ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अब हमारे सेक्युलर करिकुलम जो आप अपने बच्चों को स्कूल्स भेज रहे हैं, वहां पर करिकुलम में क्या होता है? तो हम देख रहे थे कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल और कॉलेज और जॉब नहीं है। का मतलब है हर वो चीज का इल्म रखना जो हमारे लिए फायदेमंद है, जो हमारे अतराफ है, जिसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो एजुकेशन है। और जिसने डिग्री हासिल नहीं की वो भी एजुकेटेड हो सकता है, और जिसने डिग्री हासिल कर ली है शायद वो इतना एजुकेटेड ना भी हो। तो आप जो अपने इतने सैक्रिफाइस करके बच्चों को स्कूल्स भेज रहे हैं, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों को क्या बना रहे हैं वो? तो सेक्युलर करिकुलम का मैं बोलूं, जहां पर अगर आप सेक्युलर से बहुत सुनते हैं स्कूल्स में, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चे के दिमाग में ये डालना दैट मैन इज द सुप्रीम ओनर ऑफ थिंग्स। ओके, ही हैज द सॉवरन पावर। इंसान खुद इतना क्या कहते हैं, मजबूत है या इतना पावरफुल है कि उसको फिर कोई और चीज की मदद की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट वर्ड्स में कहीं नहीं बोला जाएगा, लेकिन जब जब टीचिंग होती है, जब एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जब सराहते हैं बच्चों के अचीवमेंट्स पर, तो हमेशा ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों को देते हैं कि यू कुड डू इट बिकॉज यू वांटेड टू डू इट, है ना? यू डू इट, यू कैन डू इट। ये वाले सब चीजें जो अच्छे हैं, बच्चों को बूस्ट करने के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन यहाँ पर गॉड फैक्टर नहीं होगा। ओके, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, सोचने में, अपने ख्यालात जाहिर करने में यहाँ पर कोई रोक नहीं होगी। मैं आगे के स्लाइड्स में आपको दिखाती हूँ कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, एंड वी ऑल आर विटनेस टू इट। सो सेकुलर करिकुलम, and when I'm talking about secular curriculum, think about the whole world as one school. Don't think कि हमारे मुल्क में तो ये नहीं हो रहा है, because everything is slowly spreading from one country to the other country. No country is safe now. Indonesia, which is considered to be a Muslim country, it has its own issues in the education department. Okay, unwillingness to accept spiritual truths, कि वो एक सुप्रीम बीइंग है, ये स्कूल में मेंशन नहीं किया जाएगा। एंड इसका हम इंशाल्लाह डिटेल में हम आगे देखते जाएंगे। मैं हूं और दुनिया है, मेटीरियलिज्म, दुनिया है और मैं हूं, इसके बाद क्या है? नो कॉन्सेप्ट ऑफ इट। सो सेक्युलर स्कूल्स में बच्चों का धीरे धीरे जहन इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि मुझसे चीज चल रही है, मैं कोई चीज इन्वेंट करूंगा तो इजाद होगी, मैं कोई चीज डिस्कवर करूंगा तो होगा, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो इट इज मी एंड आई, राइट? तो यहां पर इस चीज की इजाजत नहीं हो रही है। यू आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट अल्लाह, एंड
एजुकेशन के हद तक तो सब ठीक है. आई मीन यू सेंड द चाइल्ड फॉर मैथ, इंग्लिश, फ्रेंच, ज्योग्राफी, कोरियन. देयर इज no problem in letting your child learn whatever is in दुनिया. But अगर कोई चीज डायरेक्ट खिलाफ हो अल्लाह के, अल्लाह अल्लाह ने जो निजाम बनाया है उसके खिलाफ हो, सो इट इज लाइक यू गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ अल्लाह, तो तब मसला होता है. और जब हम इस तरीके के अमल करेंगे तो फिर हमारी जिंदगी में मसले होंगे, क्योंकि what has happened, ये वाला फर्स्ट सेशन में what I said, the purpose, everything that we do should be to worship Allah. तो ये दो अलग अलग चीजें नहीं हो सकते. तो आप as a parent who's sending the child to the school, your role should be, am I pleasing Allah? Does it fit in my purpose circle? Okay, if you're pleasing the school and not pleasing Allah, then you are actually going against Allah's commands. So clearly, if it doesn't fall in the circle, then we have lost the purpose. तो हम सब कर रहे हैं, हम सब चीजों में we understand everything, but then the most important connection to Allah, that is broken, and that is what we need to inshallah bring back. तो सबका, आपका, मेरा, आपकी वालिद का, आपके जितने भी खानदान में लोग हैं, हम सबका पर्पस एक है, but some of us are totally lost. हम चल तो रहे हैं बट पता नहीं किस डायरेक्शन में चल रहे हैं. विल बी रीच दैट गोल और नॉट, वी डू नॉट नो. तो आप इतने लाखों के पैसे डालकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 15 साल पढ़ाएंगे आप, लेकिन हैव यू रीच्ड द गोल? हैव यू हेल्प्ड योर चाइल्ड रीच द गोल? 15 साल कहीं ऐसा ना हो जाए कि कयामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछ ले कि ये 15 साल इबादत में गुजारे या नहीं गुजारे. एंड इफ यू से कि इबादत का मतलब है नमाज हम बच्चों को पढ़ाते थे, एंड देन बाकी काम वो अलग डिपार्टमेंट में आता है, देन नो, then you will be in trouble. The child's education, the child's namaz, the child's food, the child's habits, the child's friends, the child's job, everything should meet the purpose. And ये सुनने में अगर अगर किसी को uh, if somebody is listening to it for the first time, it might sound very overwhelming. अरे ऐसा थोड़ी होता है. लेकिन it becomes very easy when you understand the purpose, inshallah ta'ala. And most of us are very, we try to fit in, and we do not want to upset the system. जैसे कि हम स्कूल जाएंगे लेकिन वहां पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वहां पर कोई नमाज नहीं पढ़ता है. तो मैं पढ़ूंगी तो बहुत अजीब दिखेगा. अगर मैं जा रही हूँ और हिजाब पहनूंगी तो मैं एकदम स्टैंड आउट हो जाऊंगी. तो नहीं, तो मैं then I will be a Muslim when I'm home or in my own circles, and in the other circles I'll try to make them feel comfortable. है ना? So how many times have you not done things to make other people comfortable? इसका मतलब ये नहीं है कि आप जोर जोर से अपने क़िरात लेकर लोगों के बीच में बैठ जाएं, पर जो चीजें जरूरी हैं, योर आइडेंटिटी एज अ मुस्लिम दैट यू हैव टू इंस्टिल इन द चाइल्ड, वो जरूरी है. बहुत सारे बच्चे, अभी तो द सिचुएशन इज वेरी वेरी ग्रिम. मैं अभी का सिचुएशन नहीं बोल रही हूँ, बट बैक 20 years बैक भी, कि बच्चे वही टिफिन में लेके जाते अपने लंच बॉक्स में जो उनके क्लास के बच्चे आर कंफर्टेबल विथ. सो वी हैव बिकम वेरी अपॉलोजेटिक मुस्लिम्स, कि अगर सामने वाले को पसंद आ रहा है तो हम वो काम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे. तो how do we create our own identities then? Some people are very comfortable. Oh no, it's my namaz time, and then they get up and they do their salah. And some people are like, पता नहीं उठूंगी तो क्या बोलेंगे, उठूंगी तो क्या बोलेंगे. Deen and dunya, if you think are two different things, if are two different areas or paths, then you're wrong.
Deen, dunya is what we do for our deen. Tell me one act in dunya which is not for our deen. आप डिग्री ले लीजिए, आप जॉब ले लीजिए, आप शादी ले लीजिए, आप कोई भी अपने जिंदगी का हिस्सा ले लीजिए, और अगर आप उसको कहते हैं कि ये दुनिया के लिए है, तो आप गलत हैं। ही दीन है। अब वो दुनिया ऐसी हो गई कि हम जब निकाह करते हैं, निकाह इज पार्ट ऑफ दीन, इट कंप्लीट्स योर दीन, बट देन हम उसमें दुनियावी रस्म लाते हैं, और अगर हम कहेंगे ये दुनिया के लिए है, तो फिर आप वैसे भी गलत हैं। So there are no two different departments. There's only one thing which is in one direction, everything goes. Okay. So remember this, inshallah ta'ala, that to your child, when somebody asked me कि हम दीन और दुनिया दोनों को बच्चों को कैसे सिखाएं, एक ही चीज सिखानी है आपको। आपको दुनिया में रहते हुए दीन पे कैसे अमल करना है, वही सिखाना है। So let us not confuse ourselves and confuse the child कि ये दो अलग चीजें हैं बेटा। जैसे ही हम दो अलग चीजें हैं बेटा बोलेंगे, वो बेचारा ये दोनों को बैलेंस करते करते परेशान हो जाएगा, एंड ही विल ऑलवेज बी इन गिल्ट। तो कभी तो वो सोचेगा कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं दीन में बहुत हूँ, और वो कभी बोलेगा कि मैं दुनिया में इतना फंसा हुआ हूँ कि मैं दीन में नहीं कर पा रहा हूँ। So that guilt factor will always remain with the child or with an individual when he thinks that these are two different things. अच्छा, सो स्कूल्स में जब दीन को हटाकर जो पढ़ाई हो रही है, एंड अगर माँ बाप कहें कि हम मसला नहीं है, हम जब बच्चा घर आता है तो हम बैलेंस कर लेंगे, हम बच्चे को वो दे देंगे जो स्कूल वाले नहीं दे रहे हैं, जैसे कि हम दीन दीन की तालीम दे देंगे, दैट इज वेरी गुड माशाल्लाह। एंड वो फर्ज आप पर है भी वैसे भी करना। मैथ्स एंड इंग्लिश एंड साइंस आप पे फर्ज नहीं है, तो ठीक है, आप स्कूल्स भेज रही हैं, लेकिन दीन तो आप पर फर्ज है। ओके। लेकिन अगर आप ऐसे कहती हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपके पास कितने आप लोगों में से, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ओके, एंड इट्स अ वेरी शॉकिंग रियलिटी। यहाँ पर जितने पेरेंट्स हैं, अगर आपके पास टीनेज बॉयज हैं, गर्ल्स का तो मसला नहीं है, बॉयज हैं, बॉयज reach their puberty, okay, and then when girls reach puberty, it's very easy for mothers to tell them that you need to purify yourself, and you cannot do salah for some time, and this and that, okay, and how do you purify yourself. So the girls are given easy instructions, but mothers shy away, or the fathers shy away from giving these instructions to the teenage boys. The boys are clueless, and then they do not know how to purify themselves. Do they even need to purify? Okay, and the day goes by, जहां पर वो बेचारे उसी हालत में रहेंगे जहां पर वो पाक नहीं है, एंड उनकी नमाज कबूल नहीं हो रही है। तो ये बैलेंस फिर आप कर रहे हैं एज पेरेंट्स, जबकि यही बच्चा, अगर पेरेंट्स फील वेरी शाई अबाउट इट, यही बच्चा उसकी स्कूल की क्लास में ही reads all about human reproduction and everything. So you feel that he's okay to know about all that at school, but not about deen when he is at home. A lot of friends of mine said कि हम कैसे बोलें बच्चे को, it's very awkward. तो वो awkwardness में you have left your child to enter the masjid, to recite his Quran, to do his namaz in the state of impurity, and he doesn't even know what's happening to him. So my point is that when we say that we will create a balance, that's a very wonderful thing. Do create a balance, but uh, are you really very conscious about what and how much to give the child? Are you ready for it? And schools में जितना फितना फैल रहा है, उसका उसका क्या करेंगे आप लोग? And if we think that it is not happening in my school, in my area, then that's not the right approach, isn't it? Because have you seen how gradually things have infiltrated?
हमको नेक्स्ट ईयर कोई एक रूल आ जाएगा जहां पर स्कूल्स में बोलेंगे कि ये अलाउड नहीं है, या फिर ये वाली हम पढ़ाई कराने वाले हैं। many schools, if there are members here who are from abroad, आपके लिए कितना मुश्किल हो गया है to raise the children, because one small uh, punishment to your child, and the child can go and complain and you will be behind bars. तो चाइल्ड को वहां पर unnecessarily, very very to a large extent he is being protected at the cost of family well-being. इंडिया में अभी तक सेक्स एजुकेशन नहीं आया, बट द टॉक इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पर कब तक आने वाला है किसी को नहीं मालूम। एंड दीज आर द बुक्स दैट हैव कम अप फॉर चिल्ड्रन, एंड दिस इज फॉर प्री प्राइमरी, फॉर किंडरगार्टन, छोटे बच्चों के लिए। This is what, these are the guests that are invited at schools. Drag queens for pre-primary children, offering a world of imagination. तो वहां पर हर चीज का टॉलरेंस सिखाया जा रहा है कि आप अगर एलजीबीटी से हैं तो उनको टॉलरेट करिए, अगर आप क्वेयर ग्रुप से हैं तो उनको टॉलरेट करिए, अगर आप फला हैं तो टॉलरेट करिए, राइट। लेकिन अगर आप दीन फॉलो करना चाहते हैं तो वो टॉलरेट नहीं होगा। तो बच्चों के ऊपर बहुत अजीब प्रेशर। Why am I bringing all this? Some of you might be saying that we all are doing fine. I mean, हम लोगों ने, we went to the similar schools, but we are fine. We coped, and alhamdulillah, we are following deen to as much as we can. बहुत अच्छी बात है। अल्लाह हम सब का जो भी अमल है वो कबूल करे। But it's not about you. It's not about how you turned out. It's about what you are giving the child. For those 14 years जहां पे आपका क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, आप अपने बच्चे को क्या दे रही हैं, उसके बाद उसके बच्चे की मर्जी है ना। तो जस्ट बिकॉज आप ऐसे वाली स्कूल्स में गई और आप अल्हम्दुलिल्लाह यू आर स्टिल फॉलोइंग दीन, दैट डजंट क्वालिफाई यू टू अलाउ द चाइल्ड टू डू व्हाट द दुनिया इज डूइंग नाउ। तो आपके ऊपर जो एग्जाम पेपर है आप उसको गौर करें, और 14 साल तक जो तरबियत आपको देनी है, जहां पर अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे, उसका ख्याल करें। नॉलेज, alhamdulillah, is not just the books, just like we found out ki education is not only qualifying from a college. Knowledge is just not books. Knowledge बहुत अलग चीजों से मिलती है, जैसे कि एबोरिजिनीज को आप देखेंगे कि maybe they have knowledge about so many things that we do not have. And सबसे ज्यादा नॉलेज कब स्प्रेड हुआ? जब इस्लाम आया था, जब जहालत का दौर हट गया था। एंड हम ये मानते हैं कि जहालत का दौर इस्लाम ने हटाया था। तो एंड इफ वी आर फॉलोअर्स ऑफ दिस दीन, देन वी नीड टू रियली रियली वर्क ऑन यूजिंग दिस ट्रेजर फॉर आवर चिल्ड्रन। We cannot allow our children to again go to this जहालियत पीरियड जहां पर इस्लाम को हटाकर पढ़ाई की जाती है ना। तो फिर हमारा यकीन और हमारा अमल, ये दो अलग चीजें हो गई। सो इस्लामिक करिकुलम की गॉडलेस आइडियोलॉजी जो है उसको हटाता है, तो टू प्रिवेंट मुस्लिम्स बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉडलेस आइडियोलॉजी। कोई खुदा ही नहीं है, ये वाला जो बिलीफ सिस्टम बन रहा है धीरे धीरे स्कूल्स के जरिए, इसको हटाना इसका मकसद है। एंड देन टू एम्फसाइज दैट इस्लामिक टीचिंग इज रेलेवेंट टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हर हिस्से में, आप अगर स्पोर्ट्स ले लें, आप अगर साइंस ले लें, कोई भी हिस्सा हो उसमें इस्लाम इज पार्ट ऑफ इट। एंड ये बहुत अहम पॉइंट है कि ड्यूअलिज्म, ये दो चीजें जो है कि सीक्रेट अलग है और सेक्युलर अलग है, ये दो अलग अलग शोबे नहीं है। दिस इज जस्ट वन। जैसे कि दीन और दुनिया दो अलग नहीं है, इट इज वन। सो सेक्युलर एंड sacred. I know a school here run by Muslims, but then they have made it very clear that we want secularism in our school. तो
I mean, what is secularism? Secularism is the belief that man is supreme. तो वो वाला अगर माइंडसेट से हम हटाना चाहते हैं तो इस्लामिक करिकुलम इज द सॉल्यूशन. ऑलराइट, एंड देन सिविलियंस जो हमारे हैं, जो हमारा गोल्डन पीरियड था, उस पर तवज्जो दिलाएं बच्चों की. राइट, दिस आई फाउंड क्वाइट फनी कि एक दौर था when in the golden era our Muslim people were inventing things and were giving it to the world. एंड अब मुसलमान की ये हालत है कि मछली पर, खरबूज पर, खीरे पर अगर वो कुछ भी देख ले जो अल्लाह और मोहम्मद जैसा दिखता है तो वो बहुत इतराता फिरता है. फिर उसको एक शोकेस में रखा जाता है, लोग आते हैं देखते हैं. आप बकरीद के टाइम पर यू मस्ट हैव नोटिस दैट कोई बकरा है जिसके ऊपर अगर कोई भी एक ऐसी राइटिंग आ गई तो ही इज पुट ऑन डिस्प्ले एंड उसका प्राइस बहुत बढ़ जाता है. सो दिस इज द लेवल वे वी हैव ब्रॉट आवरसेल्व्स टू. सो हमारे पास से हम लोगों ने खुद इल्म को हटा दिया and we have gone back to the Jahalit period where we are completely dependent on what they give us. What was given to us, we have just forgotten about it and हम फिर वही भाग रहे हैं जहां से हमारी कोई फला नहीं होगी. What can be done? So I'm saying that the schools that you are sending your children to are not giving what should be given to them. तो अब क्या करें? अब आपके बच्चे तो स्कूल्स जा रहे हैं. So I have a few solutions to these issues and inshallah इसमें से कोई ना कोई तो आपके लिए applicable होगा. सब applicable नहीं होंगे, सब अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ इंशाल्लाह ताला आप लोग नियत करें कि अल्लाह ताला ये जो मैं अमानत है जिनको मुझे पालना है और इनका इल्म का जिम्मा भी मेरे ऊपर है, तो मैं आपसे जोड़ते हुए इनका इल्म पूरा करूंगी. ओके, सो द 5 solutions that I have in mind. One is fill the gap. जो बच्चों को स्कूल में नहीं मिल रहा है वो आप घर पर दें. जो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रही हैं कि आप कर रही हैं, we will talk in detail how it can be given. Okay, fill the gap and then if possible choose a faith based school. ओके, मुस्लिम स्कूल को आप चूज करें अगर आपके एरिया में है और अगर आप मूव कर सकते हैं तो प्लीज डू दैट. इफ नॉट, चूज एटलीस्ट अ न्यूट्रल स्कूल. आई यू बट हाल में हैलोवीन हुआ था. सो अ मुस्लिम टीचर who's इज अराउंड 40 to 45, okay, she joined as a new teacher. And she's quite clear about a few practices. But then उनके स्कूल में प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए हैलोवीन सेलिब्रेशन हुआ, और वो भी कहाँ पर, इंडिया में. इंडिया में दूर दूर तक का हैलोवीन का कोई कनेक्शन नहीं है, बट देन वी हैव मेड इट पार्ट ऑफ आवर कल्चर. सो स्कूल में हैलोवीन सेलिब्रेशन हुआ and the teachers were asked to dress differently. And this teacher, who's my friend, she was asked to dress as a witch, एक चुड़ैल के जैसे. And that teacher did. So the teacher made a hat, made a pointed nose or whatever, and then she dressed as a witch and she went into the classroom and she did whatever she was asked to do. तो इसमें when we say knowledge and education, जहां पर कोई भी beneficial चीज हम हासिल करें, तो आप मुझे बताएं जितने प्रैक्टिस स्कूल में हो रहे हैं ये आपके बच्चों के लिए बेनिफिशियल है? नहीं है, बट स्टिल हम भेजते हैं बिकॉज हम कहते हैं कि अब क्या करें, स्कूल में हो रहा है, चलता है. सो एटलीस्ट चूज अ स्कूल दैट डजंट प्रैक्टिस ऑल दीज बिलीव्स. एटलीस्ट आप उतना तो कर सकते हैं. ओके, हाइब्रिड स्कूल इज वेरी कॉमन दीज डेज. स्कूल का मतलब है ऑनलाइन स्कूल. कहीं पर ऑफिस होगा, टीचर्स
कहीं दुनिया के किसी भी कोने से हो सकते हैं, बच्चे भी कहीं से भी हो सकते हैं, एंड वो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, उनका एक टाइम टेबल होगा, उनका करिकुलम होगा। तो उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे कि अब आई नो अ फैमिली, उनके बच्चे हाइब्रिड स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यू नो फैंसी ड्रेस है, ड्रेस एज सम, थोड़े अगर नाम देते हैं, एंड अगर वो फैमिली को ऑब्जेक्शनेबल दिखा, जो कैरेक्टर को वो कहते हैं कि उस तरीके से ड्रेस करें, और वो ऑब्जेक्शनेबल दिखा, तो दे डोंट पार्टिसिपेट। ओके। तो ऑनलाइन हाइब्रिड स्कूल्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। And then last is homeschooling. Homeschooling is not for everyone, but there is really picking speed. बैंगलोर, पुणे, बॉम्बे, इतने सारे इंडिया के मैं शहर गिना रही हूँ आपको, जहां पर पेरेंट्स को ये शऊर आ गया है कि हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं, इनकी तालीम भी हमारी जिम्मेदारी। पहले ऐसा होता था कि आप एक्सपर्ट्स के पास भेजते थे क्योंकि आप हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, बट नाउ the place has become so dangerous that you will have to protect your children. एंड आप, जो मैं आपको बोल रही थी कि द डिग्री यू अचीव, यू प्रोक्योर्ड, और आप लोगों ने शायद मास्टर्स किया है, उसका क्या फायदा हो रहा है फिर? अगर आप 7-8 साल के बच्चे को नहीं पढ़ा सकेंगे अपने एजुकेशन को लेके, अपनी डिग्री को लेके, तो उसका क्या फायदा हुआ? तो एटलीस्ट द प्राइमरी स्टेज यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, जहां पर आपको पूर्ण होने वाली है अल्लाह ताला की तरफ से। सो एटलीस्ट वर्क ऑन दैट। ये बहुत सवाल आता है कि स्कूल कैसा लें, जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या लें। तो मेरा सवाल वापस पेरेंट्स से ये होता है कि आप चाहते क्या है स्कूल में, स्कूल आपके बच्चे को क्या दे? डिस्टेंस कम हो, या फिर आप कहते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छी हो, या आप कहेंगे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा हो, प्लेग्राउंड बहुत अच्छा हो, वहां पर कराटे की क्लास हो। सो यू ऑल्सो हैव सर्टन थिंग्स दैट यू वांट फ्रॉम अ स्कूल, व्हाट डू यू वांट, एंड आफ्टर दैट there are this is the list of things that you should keep in mind when selecting a school. So inshallah, if you want to look for new schools in the coming year, uh, what is the academic excellence in the school? Okay. And it's very easy to know because they keep promoting it, they keep marketing it. Values and vision क्या है? एक हम स्कूल पर गए थे ट्रेनिंग के लिए, तो वहां पर इट वाज समर टाइम, एंड आई वाज थिंकिंग आई विल, इट्स अ नाइस स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल था, और मैं सोच रही थी कि मैं जब जाऊंगी तो मैं इनको बोलूंगी कि आप बाहर जो है ना, जो भी बाहर वर्कर्स होते हैं या ऑटो वाले होते हैं या अ, बाहर के लोग हैं, उनके लिए पानी का इंतजाम आप कर दें। दिस इज अ वेरी सिंपल help that you can do. I thought of telling them, but when I went to the school, I saw two very, very big containers of water outside the school. तो ये इनकी वैल्यूज हैं। तो आपको वैल्यू समझने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, स्कूल की वैल्यू का क्या है। ओके, स्कूल का मकसद क्या है, टीचर्स की क्वालिटी कैसी है, आप आराम से पहचान लेंगे कि फला स्कूल की टीचर है और वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, अखलाक बहुत अच्छे हैं, बहुत नरमी से पढ़ाती है। इनके, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे बहुत तवज्जो करते हैं, पोइट्री रेसिटेशन आपके लिए, ड्रामा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप मालूम करें। बिल्डिंग, मैं तो ये कहूंगी कि आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में ना भेजें जहां पर ना बच्चा धूप देख सकेगा, ना हवा, ना ही वो मूव कर पाएगा। सो देर आर स्कूल्स बिल्ट इन बॉक्सेस। सो जब आप इतने हजार दे रहे हैं, why do you send him to a place where he is imprisoned for at least 7 to 8 hours? Okay, so and all these, ये आपके ऊपर, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसा स्कूल सेलेक्ट करेंगे। आपके 5 साल का बच्चा तो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बी वेरी वेरी वाइज इन व्हाट टाइप ऑफ स्कूल डू यू वांट टू सेलेक्ट। यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है? होलिस्टिक का मतलब है कि हर हर एंगल से पढ़ाई भी हो रही है यहाँ पर। जैसे पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप तवज्जो देना चाहते हैं, तो हर एंगल से होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर स्कूल कर रही है, पेरेंट्स को वो आने देते हैं, पेरेंट्स का राय मशवरा लेते हैं या नहीं लेते हैं, और दे शट द डोर्स एंड सिर्फ साल में एक दफा बुलाते हैं।
पेरेंट्स तो बहुत अहम हिस्सा होते हैं स्कूल के, तो अगर पेरेंट्स की बात ना सुने, पेरेंट्स को इन्वॉल्व ना करें स्कूल की ग्रोथ में, तो फिर वो कैसे ग्रो होगा स्कूल? क्योंकि पेरेंट्स हमेशा कंप्लेन करने वाले नहीं होते, उनके पास कभी बहुत अच्छे मशवरे भी होते हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल स्टेबिलिटी, ये स्कूल हाउ टॉलरेंट इज इट? ओके, आप अगर ये रिक्वेस्ट रखते हैं कि हमारे बच्चे की रिक्वेस्ट है कि वो हिजाब में आएगी, वो अपनी नमाज वक्त नमाज पे पढ़ लेगी, टाइम पे पढ़ लेगी, और वो आपके अगर कोई रिलीजियस फंक्शंस है उसमें हिस्सा नहीं ले, उसके अलावा वो हर चीज जो स्कूल एज एज एकेडमिकली उसके लिए फायदेमंद है, वो हर चीज वो करेगी। अगर आप ये रख सकते हैं कंडीशन एंड स्कूल एग्री करता है, तो फिर ये बेहतर स्कूल है। अगर नहीं, अगर वो कहता है कि नहीं आप हिजाब नहीं पहन सकती और आप नमाज नहीं पढ़ सकती, एंड फिर भी अगर आप बच्चे को भेजते हैं वैसे स्कूल पर, तो आई रियली वांट टू आस्क यू व्हाट इज द पर्पस? ओके, लोकेशन एंड फीस तो आप देखते ही हैं, और रेपुटेशन वगैरह भी, आप वर्ड ऑफ माउथ तो होता ही है कि ये स्कूल अच्छा है या वो नहीं अच्छा है। तो इसमें मैं कहूंगी कि बहुत अहम पॉइंट है पॉइंट 9, क्योंकि ये अगर अगर बच्चा 15 साल का हो गया और वो ऐसे कॉलेज जा रहा है, तो वहां पर नमाज की बात जरूरी है, बट द बच्चा सेज दैट नहीं मेरे फ्रेंड्स वहां जा रहे हैं, मैं जाना चाहता हूँ वहां पर, एंड वो जिद कर रहा है, तो आप पर नहीं है ना, आपके पर पूछ नहीं है, उससे पहले तो आप पर पूछ है। सो बी वेरी वेरी विजिलेंट ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्कूल यू सेलेक्ट। ओके, तो हम जो मैं सॉल्यूशंस आपको दे रही थी, इसमें इंटीग्रेट वाला टॉपिक हम बात करते हैं अभी। व्हाट इज द राइट एज टू एनरोल? I, if you are a very sensible, wise mother, then don't send the child very early. You use the time to teach him. बट अगर आप घर पे बच्चे को रखकर उस बच्चे का वक्त बर्बाद कर रही हैं, जब वो उसका बहुत absorption वाला है, जब वो हर चीज को इतनी फौरन फौरन लेता है, अगर आप उसको घर पे मोबाइल देकर बिठा देंगी, वक्त बर्बाद होगा। तो फिर घर पे रखना सही नहीं है। बट आई आई वुडेंट रेकमेंड कि बच्चे को आप बहुत जल्दी स्कूल भेजें, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो घर पर नहीं सीख सकता। Alright, so the school curriculum is very very easy in the early years, जो हर माँ को आना चाहिए। We will look at it later inshallah ताला when we do our other sessions. इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? दो चीजों को मिलाना। तो हम दो चीजें किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो बच्चा स्कूल में सीखता है, और जो अल्लाह ताला का इल्म है, मतलब जो कायनात में जो इल्म है, ये दो चीजों को हम इंटीग्रेट, जोड़ने की बात कर रहे हैं। एंड ये बहुत सारे टॉप स्कूल्स में बहुत फॉलो होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो दीन को नहीं इंटीग्रेट करते। वो दो अलग चीजों को, जैसे कि स्पोर्ट्स विद एजुकेशन, म्यूजिक विद एजुकेशन, आर्ट्स विद एजुकेशन, इस तरीके से ये दो चीजों को मिलाकर पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? सो दैट बच्चा आसानी से सीख ले। फर्ज करें कि मैथ्स है, ओके, बच्चे को मैथ्स सीखने में मुश्किल होती है, तो वो उसमें फिर आर्ट्स लाएंगे एंड उसको मैथ्स पढ़ाएंगे, तो आर्ट्स के जरिए वो मैथ्स आसानी से सीख ले। सो इट इज इंटीग्रेटेड लर्निंग, जो बहुत सारे स्कूल्स में अक्रॉस द वर्ल्ड अप्लाई किया जाता है, एंड बच्चा उसको यूजफुल, आई मीन ही फाइंड्स इट वेरी यूजफुल। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस्लामिक इंटीग्रेशन की। ठीक, तो ये मेरा बैकग्राउंड है, जहाँ से मुझे इस चीज़ की समझ आई, व्हाट इज इस्लामिक इंटीग्रेशन, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, एंड व्हाई इज दिस द ओनली वे टू टीच एंड लर्न। सो लेफ्ट पे इज माय मुदीर। मुदीर का मतलब है हेड। जो ये स्कूल के थे, अल अक्सा ये स्कूल का नाम है जहाँ पर मैं काम करती थी। तो इंटीग्रेशन के का जो भी अप्रोच है, आई लर्न फ्रॉम हिम। एंड ऑन द राइट इज डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, जिनका आप लोगों ने शायद कोई लेक्चर भी सुना होगा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन वाली है इनकी। तो इनके साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है अगेन अबाउट इंटीग्रेशन, सो आई विल टॉक अबाउट दैट। ओके, व्हाट डज अल्लाह से? अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में अपनी आयात को
बिखेर दिया है। एंड इस आयत को अगर हम देखकर अ, बच्चों को गौर व फिक्र करना नहीं सिखाएं तो फिर हम असल मायने में तालीम नहीं दे रहे हैं। सो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि आप देखो और इस आयत से सीखो और अपना अपना यकीन जो है और मजबूत करो। तो हम खास करके जो हम कह रहे हैं वो कौन करे, कब करे, कहाँ करे, ये सब चीजें हैं। तो ये हम इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं, देन आई लीव सम टाइम फॉर क्वेश्चंस। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? All the things that your child learns at school is something that can be integrated. इसमें क्या कोई एक ऐसा टॉपिक है जो अ, जिस पर हम अल्लाह ताला की कुव्वत के बारे में बात नहीं कर सकते हैं? तो हम बच्चों को तो ये पढ़ाते हैं स्कूल्स में, लेकिन स्कूल में तो जिक्र नहीं होगा अल्लाह ताला का। तो हमको ये जिम्मा लेना है कि हम वो गैप कैसे फिल करें। हम बच्चों को, जब ये बच्चे सीख रहे हैं स्कूल में, जब घर आता है बच्चा तो हम लेकर बच्चे को, जब हम होमवर्क करा रहे हैं, हम तो रोज होमवर्क कराते हैं, बच्चे को जब होमवर्क करा रहे हैं तो हाउ डू वी इंटीग्रेट इस्लाम इन हिज लर्निंग? ओके। सो जितनी भी चीज कायनात में है, अंदर ऊपर बाहर हमारे अतराफ, दे ऑल टॉक अबाउट अल्लाह's क्रिएशन। सो ये चीजें अगर आप बच्चे को गौर व फिक्र करना नहीं सिखाएं तो फिर दिस समथिंग वेरी वेरी क्वेश्चनेबल अबाउट योर पेरेंटिंग। बट स्कूल में क्या सिखाते हैं? स्कूल में सिखाते हैं कि हम बंदर से इवॉल्व होकर इंसान बने हैं, और जब हम मर जाएंगे तो हम मर गए, खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है। तो इस्लाम तो ये नहीं है ना। तो ये, हाउ आर यू एज अ पेरेंट ओके विथ समथिंग दैट इज नॉट राइट? अगर अल्लाह की अल्लाह का जो कानून है या अल्लाह जो कुरान में बताया गया है उसके खिलाफ अगर स्कूल में जाके बच्चा कोई पढ़ रहा है, ओके, एंड हम फिर भी उस चीज पर ओके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खड़ा। थोड़ी चीजें मजबूरी पे होती हैं। अगर आप साइंस के एक्सपर्ट नहीं हैं, आप मैथ हैं, तो आप स्कूल भेज रहे हैं बच्चे को तो भेज दें, लेकिन बी वेरी केयरफुल व्हाट टाइप ऑफ स्कूल यू सेंड टू। डोंट मेक इन द दीन। यू कैन सेंड द चाइल्ड ऑफ कोर्स टू स्कूल्स, क्योंकि हम नहीं कर सकते, बट दीन के खिलाफ ना हो। एंड जब साइंस में ये चीजें हो तो जब बच्चा घर पे आप तो आप बात करेंगी, और यही मौका है जब आप आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाएंगी। आप जब व्हाट आफ्टर डेथ, लॉन्ग लाइफ आफ्टर डेथ, नेवर एंडिंग लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बात करेंगे। ओके, सो दिस इज द फॉर इंटीग्रेशन वी टॉक अबाउट नेचुरल साइंसेस जो हमारे अतराफ हैं, ओके, सोशल जो 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 सिस्टम्स हैं उसके बारे में, ओके। ये ऑर्डर है, बट पहली चीज कम से कम जो बहुत आप प्याज काट रही हैं, टमाटर काट रही हैं, फूल देख रही हैं, आप बादल देख रही हैं, ये हर चीज पर आप बच्चे से बात कर सकती हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, यू माइट, हर हर ऐसा मौका है, अगर आप दादी हैं, आप खाला हैं, आप आंट, देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इंटीग्रेशन। Food, there is a topic in this students textbook. There is a topic about trees. तो आप इंशाल्लाह ताला ये सोच के चलें कि अगर बच्चे को अल्लाह से जोड़ जोड़ देती हूँ तो ये मेरे लिए सवाब जारिया होगा। इस ख्याल से आप, अगर आप माँ नहीं भी हैं, तो इंशाल्लाह ताला प्लीज डू दैट। ओके, क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क टिल नाउ? एम आई मूविंग टू फास्ट? क्यों इंटीग्रेशन करना होगा? इतना टॉक्सिक, इतना अगेंस्ट इस्लाम वाला कल्चर या एजुकेशन सिस्टम बच्चों को मिल रहा है कि जब तक आप द राइट फूड अगर आप बच्चों को नहीं दें तो उनके पास उतनी ताकत नहीं होगी टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन देयर दीन।
सो ये अगेंस्ट जो अपोजिंग फोर्सेस के साथ बच्चे को जो लड़ना है, अपोजिंग फोर्स का मतलब ये है जो उनके दिमाग में जो डाला जाता है, उससे अगर बच्चा लड़ना चाहे तो फिर उसको द राइट फूड, द राइट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन बाय यू, एंड यू आर द ओनली पीपल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. डोंट लीव इट फॉर अदर्स. डोंट थिंक कि अरे वो बच्चा मौलाना से सीख लेगा या कहीं होगा. ओके. हाँ. मूविंग ऑन. कब, हाँ, ये बहुत सवाल आता है कि कब से इंटीग्रेशन किया जाए, कब से. द आंसर इज वेरी सिंपल. जब तक आपका एग्जाम पेपर, जब तक आपके वो विंडो पीरियड ओपन है, तब तक आप करें. उसके बाद भी आप करें, बहुत अच्छी बात है. बोनस पॉइंट्स हैं, एंड देयर इज नो एंड टू द बोनस पॉइंट. Yeah. I will come to your question, Nashin. Islamic schools are not affordable. Huh? I'll come to that. Definitely. Um, हाँ. Homeschooling is, Alhamdulillah, is picking speed. Inshallah, I will share somebody's number in the group if you want to connect with them. Because ऐसा होता है, when I come to the topic, I will inshallah speak. Okay. आप अच्छा, तो कब शुरू करना है? आप सोचेंगे as a mother, as a father, you are very, you have a lot of रहमा in your heart. अरे बेचारा, पहले ही बच्चा इतना सीख रहा है, इतना उसको होमवर्क होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर मैं कैसे इंटीग्रेशन का और उसके ऊपर. ओके. Believe Allah will strength to absorb the knowledge. He will because he will make sense of what he's learning at school and what you are telling him about his creator. तो ये ऐसी कोई नहीं आयत याद करनी है और फिर मैं इसका इम्तिहान. इट्स तदब्बुर कि आप सोच. तो और फिर आपके पास बहुत सारे लोग अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल्स भी भेजते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो अगर आप में से कोई हैं जिनके बच्चे दे गो टू इस्लामिक स्कूल run by Muslim people, and they might think, well, my child already goes to an Islamic school, I don't need to do anything extra, so I'm sorted. Okay, so uh, I can tell because Alhamdulillah, I've been to hundreds of schools, both Islamic and non-Islamic. Islamic schools की अगर बात की जाए तो I can count on my fingertips the schools that are Islamic in real sense. I don't even need my two hands to count. They are schools, Muslim management, and they have Islamic studies class. That's all. And everything is happening in separate boxes. So again, Deen, Dunya, they're separated. So what message are we giving our students in Muslim schools? ये दुनिया है, अभी हम दुनिया की पढ़ाई करते हैं, और अभी ये दीन की 40 मिनट्स की दीन की पढ़ाई होगी, फिर क्लोज. लेट अस क्लोज द दीन. एंड that is not the meaning of ilm, that is not the meaning of education. इंटीग्रेशन का मतलब ही ये है कि हम हर वो स्टेज पर अपने लाइफ के इस्लाम को लेते हुए चलें. There might be teachers in this gathering or some associated with schools. Don't think it's adding more to the child's curriculum or to the teacher's teaching. It's just the perspective. See, if there is a topic, okay, let's teaching about water cycle, okay. So the scientific facts I will anyway tell the child, because I, as subject expert, have to give the perspective from the expertise side. तो वो मैं दूंगी, लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये भी बोलूंगी कि have you ever wondered what happened if Allah did not command the clouds to move from one place to the other? And have you noticed that there are clouds that are holding water in it, but they never
fall there. In Islamic, Mumbai Islamic schools, I have a few, inshallah, I'll mention, okay? Al Momina is one where I have been, and Alhamdulillah, they are doing sensible job. Um, okay, so it's not about making it difficult, because how can Allah's knowledge become difficult for anybody? For the child who has been created by the Creator, knowing about the Creator is not a burden. Everything else that we as humans have added for the children can be a burden. Okay, so that was about integration. And now talking about homeschooling, uh, there is a project. We understand that there are many parents who want to homeschool but find it difficult because they're not from the teaching background, or they have no clue about how lesson plans are created and how to have interesting activities. So IOU took it upon themselves, and uh, they said, we will create lesson plans and give it to you. Part of the project, and we were creating lesson plans, giving it to the students who are homeschooling. So आप integrated lesson plans लें, scientific facts को वैसे ही रखते हुए हम आपको ये बताएंगे कि बहुत subtly, बहुत आराम से आप दीन को कैसे उसमें शामिल करें. Okay. So this was about homeschooling. And as I said, inshallah, I will leave somebody's number who's doing, alhamdulillah, quite a lot of work on homeschooling as Muslims. आपके लिए वो फायदेमंद होगा. Okay. Moving on. Have you seen this? Read about this? Yes, we all have, because we all come from schooling background, and you have seen your children learning about all this. Now, is it difficult for you when you sit in the evening? Is it difficult for you as a father or as a mother to talk to your child about what Allah says about a tree, about how planets revolve around the sun, and how He has placed them, how Allah has created the sky without any pillars? If you're teaching about trees, will it be difficult to talk the trees in Jannah? How big the fruits are going to be? And how provides food to a seed. The seed cannot move on its own, but Allah still provides the seed with food for it to grow, because seed is a living thing. Yeah, yes, Umayli. I know it's not difficult. Inshallah, the future, I'll share what we're going to do to help the mothers, inshallah, or the fathers as well. Okay. And I was reading just 2 days back, and Allah subhanahu wa ta'ala mentions about shadow. And shadow is a topic in the science textbook. Allah says that, don't you see how the shadows move from right to left, and then they prostrate to me, and every creation on earth prostrates to me? तो ये तो बहुत, मतलब, like the child will be in awe जब उसका ये एज है जहां पर वो हर चीज को वाव एंड ऑफुल एंड वंडरफुल कहता है. तो उसको सोचिए कि आप जब उसके रब से जोड़ रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो तो फिर ही विल बी इन क्या कहते हैं कि गॉब्समैक जो कहते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ऐसे करते हैं, ये अल्लाह ताला ने बनाया है. अच्छा, मिट्टी मिट्टी को अल्लाह ताला ने इस चीजों से बनाया है, मिट्टी वैल्यूएबल है. Okay, so this only helps the child to love his creator more and more. ये वाले, these are the small facts that used to come behind every notebook. I remember. And I'm sure many of you remember. But अब क्या हो गया? I shared a picture a few slides before. Rapunzel, Snow, वो पता नहीं अलादीन की जो भी character है. So these are the characters that are being mentioned, that are being printed in the notebook. But imagine if these facts, you come across this fact, then you again use it as an
talk about Allah. Opportunity missed. Parent really wants to do it. आपके स्कूल्स में बहुत, if you have gone for some new schools, बहुत बोलते हैं ना कि critical thinking हम सिखाते हैं बच्चों को. This is critical thinking. It is helping the child to think, remember, realize who is. तफक्कुर करना सिखाते हैं, तदब्बुर है, ये सिखाते हैं. तो आप इंशाल्लाह ताला पहली चीज तो स्कूल्स को बहुत संभल के चूज करें. और फिर उसके बाद अगर स्कूल्स में नहीं हो रहा है जो काम, जो आपकी जिम्मेदारी है, जिस पे आपकी पूछ होगी, आप इंशाल्लाह ताला फिर मौका लें जब आप बच्चे के साथ बैठती हैं टू टॉक अबाउट अल्लाह. ओके. एंड बच्चे को बताएं कि साइंस इज नॉट द एंड टू एवरीथिंग, बिकॉज थियरीज कम एंड गो. कभी बोलेंगे ये सही है, कभी बोलेंगे वो सही है, कभी बोलेंगे नहीं था ये सही है. तो बट अल्लाह ताला ने जो बता दिया है, दैट इज फाइनल. क्योंकि अल्लाह ताला, all he has to do is say kun and it happens and it doesn't change again. When Allah says that the two oceans don't mix, the waters of the two oceans, aaj tak it hasn't mixed. तो ये इंशाल्लाह ताला आपको आपके, क्योंकि your child or somebody's child, now I am repeatedly saying, if it is not your child, then it can be somebody's child, because your purpose is how do I attain Jannatul Firdaus. And आपको इतनी उसमें घबराहट होनी चाहिए कि मैं किसको पकड़ूं अपना जरिया बनाने के लिए. तो आप नेबर के बच्चों को पकड़िए, आप लिफ्ट में कोई दिखा आपको, आप उससे बात करिए, आप किसी दावत में गए थे, आप बात करिए. ओके. सो ऑलवेज मेक ए पॉइंट कि आपके जरिए बच्चे में वो कौन सी ऐसी नॉलेज पहुंच जाए या फिर उसका अमल सीधा हो जाए जो आपके लिए सवाब जारिया बन जाएगा. डोंट लिमिट योरसेल्फ टू योर चिल्ड्रन. द वर्ल्ड इज वेरी बिग and the opportunities are huge, inshallah ta'ala. Okay. So this was about integration, and don't outsource everything. ये मत सोचिए कि मैंने outsource का मतलब है हम किसी दूसरों को बाहर वो काम करवाते हैं. तो मेरे इस्लामिक स्टडीज के लिए there is an online, या फिर हैं, you respond. Allah will ask you first, and फिर वो जो मौली साहब हैं या जो हैं उनका अलग सवाल होगा. So be wary of that. Okay. So now, how do we help people? Best Islamic schools in Hyderabad. I'll tell you a few schools that are aware of what they're doing. देखिए, इस्लामिक स्कूल के नाम पर अगर मैं बच्चियों के सर पे स्कार्फ पिना दूं और हाफ स्लीव का यूनिफॉर्म रखूं, तो आप उसको इस्लामिक स्कूल कहेंगे? How many children have you not seen जो यूनिफॉर्म में हाफ होता है स्लीव, but MS, alhamdulillah, MS is doing good. Creekside is doing well because Creekside has ground swimming pool, and it is conscious about integration. Yeah, Hadia, Creekside, yeah. MS Creative. Please look at the values as well. What values is your child learning from there? क्योंकि हम अगर सब्र सिखाते हैं बच्चों को, हम सिखाते हैं कि यू नो कोई भी हम वैल्यू सिखा रहे हैं और अगर वो स्कूल में नहीं हो रहा है, तो then ABM, Allah Alam, I don't know about. I will leave a few names of the schools in the group, inshallah ta'ala. Next week is again going to be about integration. So this topic is also going to be taken in the coming session. Bhopal mein, what about Eastern Public School? हम नेक्स्ट सेशन में अगर आप लोग इंशाल्लाह ताला इसको सीरियसली समझ रही हैं, हम ये सीखेंगे कि हम बच्चों को
उनके टॉपिक्स हुए कैसे अल्लाह से जोड़ें, इंटीग्रेट कैसे करें। ओके, अब let me talk about the course that we are inshallah planning to do after these sessions. Why should they be a course? Because we feel that parenting is the only role जहाँ कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, जबकि वो सबसे जरूरी रोल है। तो उसमें जब तक पेरेंट वक्त ना लगाए, अपना मेहनत ना लगाए, अपनी फिक्र ना लगाए, it's difficult to pass that test. So we want parents to take up any parenting course, हमारे से लें या आप कहीं और से लें, वो आपकी मर्जी है, but invest some time inshallah taala. I will we have the next week as well, so I will get all the details about homeschooling, good schools in Bangalore, Bombay, Bhopal, Hyderabad, um, inshallah taala. Okay, so the course that we are planning is your role as a parent from Islamic perspective. डीकॉलोनाइज योरसेल्फ, इसके ऊपर हम थोड़ा सा अच्छा खासा वक्त गुजारेंगे। डीकॉलोनाइज का मतलब क्या है? कॉलोनाइज का मतलब क्या? जब ब्रिटिश लोग आए थे, दे मेड डिफरेंट कंट्रीज एज देयर कॉलोनीज, एंड वो अपना राज चलाकर गए थे। तो वो तो चले गए, लेकिन उनका माइंडसेट अभी तक दिमाग में रह गया। जैसे कि कोई एक बच्चा अगर बहुत अच्छे स्पून से खाता है अदब से, तो हम कहते हैं कितने तमीज वाला बच्चा है। और क्योंकि हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मैनरिज्म, गुड ईटिंग हैबिट मींस सिट वेल एंड देन ईट विद अ स्पून। तो ये तो बहुत छोटा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, लेकिन हमको अपने आप को डीकोलोनाइज फ्रॉम माइंड करना है। हमको वो आदतें और वो बिलीफ सिस्टम छोड़ना है जो इंसानों से हमको मिली हैं, और हमको इस्लाम से जो मिला था उसके पास वापस जाना है। Okay, what is some people in the feedback asked about psychology. So we will be doing early childhood development, कि बच्चा कौन सी उम्र से सीखता है, क्या सीख सकता है, पढ़ाई कब से शुरू करनी चाहिए। और फिर बहुत सारे पेरेंट्स का मसला, जब बच्चे टीनेज के हो जाते हैं तो एक स्ट्रगल, एक टग ऑफ वॉर शुरू हो जाता है। आप कुछ कहते हैं, बच्चा कुछ कहेगा और बोलेगा मुझे मालूम है। सो हाउ डू यू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज एडोलेसेंस, एंड हाउ डू यू इंशाल्लाह deal with that situation or that stage? Okay, how as a collective family do we need to set rules, stay on the rules, and who has which role? एंड तरबियत और तालीम का फ़र्क क्या है? तरबियत और तालीम से हम अल्लाह ताला से बच्चे को कैसे जोड़ें? और ये बहुत मसला बन गया है। आप जितने यहाँ पर अगर सिस्टर्स हैं, यू हैव सीन मेन हु डू नॉट प्ले द रोल ऑफ खवाम। ये क्यों होता है? क्योंकि तरबियत में कहीं ना कहीं कोई समथिंग वाज लैकिंग, where they didn't understand what is their role. So can you as mothers, inshallah, as fathers, can you create khawam, real men that Islam wants, not what the world has as the definition? And लड़कियों की जो हैं, how can you create strong mothers who are going to carry forward the ummah? तो ये एक बड़ा मसला बन गया है कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं खुद कमाऊंगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला माइंडसेट हम बच्चों का कैसे बदलाएं? पहले तो हम खुद बदलें। अगर हमारा माइंडसेट है वर्किंग, पैसे कमाना, इंडिपेंडेंट रहना, तो ये हम उस माइंडसेट से कैसे हटें? हमारा रोल एज अ वुमेन क्या है, क्या मकसद होना चाहिए उसके, जो practices हैं, do they really match with the purpose? And Allah has created us for differently and men differently. Are we doing justice to it? ये जो women empowerment का जो चला हुआ है हर जगह, is it really Islamic? Should we as Muslim women follow that bandwagon and keep saying ki we want women empowerment? Allah has already empowered us with so many things in so many manners. Do we even know our Islam, and do we know how powerful we are? तो ये जब हम जानेंगे, फिर हम इंशाल्लाह ताला बच्चियों को उस तरीके से तैयार करेंगे जैसे इस्लाम चाहता है। फितना,
आपके बच्चे बाहर के मुल्क के पेरेंट्स तो बहुत परेशान है, यहाँ के भी मुल्क के मदर्स पॉन पोर्नोग्राफी ऐसी आम हो चुकी है कि बच्चा कोई नॉर्मल चीज भी सर्च करे तो दैट पॉप्स अप, एंड you wouldn't even know how the child is sucked into it. जो दूसरे इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं, हाउ डू वी सेव आवर चिल्ड्रन फ्रॉम दैट? ओके, व्हाट आर द एजुकेशनल थियरीज? तो ये सब चीजें इंशाल्लाह ताला और भी चीजें होंगी जो हम कवर करेंगे। ओके, तो कोर्स कैसे होगा? हम एटलीस्ट 3 महीने आपके चाहते हैं जहाँ पर हम एक्सटेंसिव रिसर्च स्टडी डिस्कशंस करें अबाउट पेरेंटिंग, जहाँ पे आप सीखें कि आपका रोल क्या है। तो इतने आसानी से तो इतना बड़ा मुकाम अल्लाह ताला ने आपको नहीं दे दिया ना, उसके लिए तो मेहनत करनी होगी। और मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप रात में जाग रहे हैं जब बच्चा बुखार में है और बच्चे के लिए टिफिन सुबह सुबह उठ के बना रहे हैं। ये अलग मेहनत है, ये एक जिम्मेदारी है। बट मेहनत यहाँ हुई जहां पर आप समझेंगे आपके रोल को और उस पर फिर आसानी से अमल करेंगे। वरना हाउ मेनी हेल्पलेस पेरेंट्स हैव वी नॉट सीन, जहां पर वो बोलेंगे कि बच्चा मेरी सुनता ही नहीं है। तो आप हैव यू एजुकेटेड योरसेल्फ हाउ टू बी अ पेरेंट इन अथॉरिटी? नो, वी हैव नॉट। तो हम इंशाल्लाह ताला 2 घंटों का सेशन करेंगे एवरी 10 डेज। ठीक है, तो 3 सेशंस हम एक महीने में रखेंगे इंशाल्लाह ताला। गेस्ट स्पीकर्स होंगे। इसके पीछे हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। और आप ये सिर्फ हमारा नहीं है, आप जितने व्हाट्सएप पे मैसेजेस देख रहे हैं, माशाल्लाह कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पेरेंटिंग पे मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इतना डाउनफॉल हो चुका है कम्युनिटी में, इतना डाउनफॉल, पर बच्चे हमारे हाथ से निकल गए हैं। और आई मीन इट रियली ब्रेक्स आवर हार्ट्स टू सी कि हमारी हमारी ही कौम अपने ही दीन को किस बुरी तरीके से प्रेजेंट कर रही है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मदर्स एंड फादर्स हैव नॉट टेकन देयर responsibilities seriously. So everybody is worried. We are working on it, and just in the morning at 9:30 there was another session by some other organization. So alhamdulillah, there are people who really want to help the parents, and now it's the parents time to take that help, take it seriously and then pass it on. आप अपने खानदान में फिर क्लासेस करें इंशाल्लाह ताला, और आप वो एक एक एग्जाम्पलरी कपल, एग्जाम्पलरी पेरेंट बने, जहां से दूसरे आपके जितने भी पेरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, वो फायदा उठाएं। इट विल बी इंटरेक्टिव इंशाल्लाह ताला। क्योंकि बहुत सेलेक्टेड लोग ही होंगे, ऐसा नहीं कि इट्स ओपन फॉर ऑल। एंड वी विल नॉट, वी वांट कमिटमेंट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज चला रहे हैं और हमारा इसमें कोई फायदा है। हमारा फायदा इस तरीके से है कि हम इंशाल्लाह ताला फिर थोड़े सालों में एक बेहतर माहौल देख पाएंगे। तो ये हमारा फायदा है, और हम खुद ऐसे माहौल में रहेंगे जहां पर अम, हम एक फख्र से कह सकें कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा दीन है और ये हमारा दीन है। तो हम आपकी औलाद को दिखा के बताएंगे कि ये दीन है। तो इसमें हमारा जरूर से फायदा है इंशाल्लाह ताला। ओके, सो इसमें सर्टिफिकेट अगर कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगी कि क्यों सर्टिफिकेट चाहिए आपको, तो प्लीज मत पूछें। योर चाइल्ड इज योर सर्टिफिकेट, एंड व्हाट ही डज आफ्टर यू पास अवे इज योर सर्टिफिकेट इंशाल्लाह ताला। ओके, हम इसको पेड बना रहे हैं। अब आप ये मत सोचें कि ये पेड इस वजह से है कि yeah, there will be a lot of work behind this, and we will want commitment from the parents. So inshallah this will be paid, and also because we only want serious people. ऐसे नहीं कि अभी अभी के सेशंस क्या होते हैं कि हम हेडफोन्स लगा रहे हैं, म्यूट पे रह रहे हैं, किचन में पकवान भी कर रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, आधा सुन रहे हैं, फिर बीच में कॉल आ गया तो हम बात कर रहे हैं। So we want real dedicated parents who will inshallah make a difference, not just to their families, to the inshallah to the bigger society. Uh, Necessary. Making girls independent in these men dominating necessary, and especially in Indian culture, but mothers didn't get. Sorry, I will disagree with this. Making girls independent,
वाली मेंटालिटी के मैं सख्त खिलाफ। मैं खुद आई वुड से आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, ओके, आई गो टू प्लेसेस, आई ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, आई डू माई सेशंस, बट आई एम नॉट सेइंग दैट this is my independence. Okay, this is the independence given to me by Allah subhanahu wa ta'ala. He has given me certain limitations. इस लिमिट के अंदर रहते हुए आप अगर खैर का काम करना चाहते, जो आपके मकसद से आपको जोड़ता है, तो आप करें। ओके, तो मकसद क्लियर होना चाहिए, अपने हुदूद क्लियर होने चाहिए, एंड फिर उसके बाद आप में जो सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है उसको इस्तेमाल करते हुए आप करें। तो just for the sake of being independent, if we want to do things, then uh, it's only displeasing Allah subhanahu wa ta'ala, जो आप हम नहीं करना चाह रहे। जॉब हर औरत का ये एक सिस्टम हो गया। व्हाट इज द टाइम नाउ? ओके, आई हैव 4 minutes। ये एक साइकिल हो गया है औरतों का कि बच्चों को पढ़ाएंगी और फिर डिग्री कराएंगी, फिर उसके बाद बच्ची 3-4 साल शादी से पहले नौकरी कर ले, फिर उसके बाद वो शादी कर सकती है। नौकरी क्यों करे? आगे चल के शायद काम आ जाए। तो ओ सॉरी, लेट मी, हाँ ये वाले, आई जस्ट टाइप्ड वेरी क्विकली द अदर टॉपिक्स दैट आई हैव इन माइंड। अगर इंशाल्लाह ताला आपके ये काम में आता है तो हम इंशाल्लाह आगे सेशंस लेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बच्चा सीखता है। स्टाइल, देर आर डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, एंड हर कोई एक ही तरीके से नहीं सीखता। आप भी जब बिरयानी पकाती हैं तो आप कभी वीडियो देखेंगी या कभी किसी सुनेंगी या किसी को गौर करके देखेंगी या पढ़ेंगी रेसिपी, तो योर लर्निंग स्टाइल इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। ओके, नाउ विच स्कूल टू सेलेक्ट वी कैन टॉक अबाउट इट इन डिटेल लेटर। आपके स्कूल का बहुत बड़ा मसला बाज़ वक़्त टीचर्स बन जाती हैं, जहां पर आप एक जंग छिड़ जाती है आप में, टीचर्स में, स्कूल्स में। तो वो जंग को कैसे बंद करें, से आप टीचर्स को अपने साइड पे रख के आपके बच्चे के फायदे के लिए काम करें। ख्वाजा, वी विल मेंशन इट इन द ग्रुप। अर्शेबाजी, इफ यू कैन प्लीज पुट द लिंक ऑफ द व्हाट्सएप। एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुआ है ऑलरेडी, जहां पर ये कोर्स कब शुरू होगा और नेक्स्ट सेशन कब है। Fees we haven't decided, so don't worry. The fees will be in proportion to the course that you are taking. And fees को लेकर आप लोग प्लीज ऐसे परेशान मत हो। आप ये सोचें कि मैं डिग्री हो गई मेरी, पीजी हो गया, इतने साल की पढ़ाई कहाँ काम आ रही है? अल्टीमेटली तो आप अल्हम्दुलिल्लाह माँ हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो उसमें कितने साल गुजर गए, कितनी मेहनत गुजरी, कितना टेंशन और कितने पैसे। तो अगर अब कोई आप एक चीज करती हैं जो आपके फायदे में, डायरेक्ट फायदे में आएगा, तो वो तो अच्छी बात है ना। How to be a storyteller for young mothers, I think this will be very, very useful, because you can use sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, the stories from the Quran, the stories from Hadith, and आप बच्चों को इतना सारा इल्म दे सकती हैं through storytelling. So there is a proper मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसी स्टोरी बोलते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता बोलना, then there is a strategy how we, there is an approach of story telling. ओके, सो ये थोड़े से प्रोग्राम्स हमारे दिमाग में इंशाल्लाह ताला हैं जो स्क्रीन पर हैं, और भी इंशाल्लाह इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। सो दिस नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम यू, इफ so the child is sensible enough and demands more from the parents, has hard expectations from them. देखिए, बच्चा नहीं सुन रहा, बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये अगर आप लोगों का ख्याल है तो ये गलत ख्याल है, क्योंकि द बच्चा विल अल्टीमेटली अंडरस्टैंड दैट आई विल नॉट गेट दिस फ्रॉम माय पेरेंट्स। वो रोएगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा, चीजें फेंकेगा, खुद को हार्म करेगा, बट अल्टीमेटली ही विल अंडरस्टैंड दैट द पेरेंट सेड नो एंड इट इज अ नो। हर चीज का मसला ये हो रहा है कि आप लोग नो बोलते हैं, और बिकॉज द चाइल्ड क्राइज एंड इंक्रीजेस हिज वॉल्यूम, then you immediately turn that no into a yes. What message are you giving the child? बेटा थोड़ा सा और रो लेते हैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि कोई भी काम रोने से और आवाज बढ़ाने से पूरा हो जाएगा।
तो यू स्टिक टू योर रूल। एंड जैसे कि हम स्कूल्स में टीचर्स को ट्रेनिंग जब देते हैं तो हम कहते हैं कि हाउ डू यू हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड व्हाट रूल्स आर। तो जब 40 बच्चों को एक टीचर वही स्ट्रैटेजी पर अमल कर सकते, तो फिर आप अपने 3-4 बच्चों को क्यों नहीं कर सकते? अगर आप कहेंगे कि 3-4 में बहुत अलग अलग पर्सनालिटी के बच्चे हैं, स्कूल में भी तो हैं। सो so don't give her attention when she cries for small things. You leave the room and you remain calm. You show that it doesn't affect you. Let her whine, let her cry. एक हफ्ता रोएगी उसी तरीके से, पूरी जिंदगी तो नहीं रोएगी ना. When she gets the message that she's not getting her way even after crying for so long, now she will think of another uh, uh, approach to it. In-laws. In-laws का आप, certain things are in your control, certain are not in your control. आप लोगों में people who have been to workplaces, or you might have learned about circle of influence. Okay, जो आपके दायरे में है, जहां पर आप इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, आप उन्हीं पर इन्फ्लुएंस करेंगे, आप सब पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. सो यू विल हैव टू, हर चीज को आप मकसद पर लेकर जाएं. ओके, मकसद आपका ये था, आपकी कोशिश ये थी, उसके बाद नतीजा नहीं निकला, आपकी जिम्मेदारी नहीं है. लेकिन अगर आप हर चीज चाहती हैं कि ऐसा ही नतीजा निकले, तो हम कोई खुदा नहीं है, नतीजा सिर्फ अल्लाह ताला के पास है. इंशाल्लाह, जरूर से. अल्लाह ताला, may Allah make her a hafiza, and may Allah make her the Muslimah who implements the Quran and not just keeps it in her heart. Okay, Amin. Start going to namaz as soon as he starts walking, please. Take him to the masjid. As soon as he can walk, he's out of diaper, take him to the masjid. Yes, why not? Please. They say, why are you making her cry? Then say that, please, mujhe na, I want to make her come out of this habit. मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये इसको अपनी जिद ना बना लें. मुश्किल है, क्योंकि आपको अतराफ वाले जो लोग देखते हैं वो कहते हैं कि आप ऐसे कैसे रोने दे रही हैं उसको, इधर आओ बेटा मैं देती हूँ, अम्मी क्या नहीं दे रहे हैं बताओ, मैं दे देती हूँ. Okay, so they make it difficult for you. It's not easy. Who said parenting is easy? It's never easy. It's the most difficult job. टीचर के लिए आसान है क्योंकि वो 4 बजे के बाद घर चली जाएगी, फिर उसका सर दर्द नहीं है. लेकिन आपका बहुत बहुत मुश्किल है. तो आप लोगों को अल्लाह से मदद मांगती रहनी चाहिए, ताकत की. एक तो जिस्मानी ताकत और रूहानी ताकत, ये दोनों चीजों की, बिकॉज इट्स वेरी ड्रेनिंग. आई नो द किड्स कैन ड्राइव यू नट्स. इट्स पॉसिबल. तो बस आप मदद मांगिए, क्योंकि अब अल्लाह ने आपको, ही हैज चोजन यू फॉर दिस ब्यूटीफुल रोल, जहां पर आप खुश भी होती हैं, परेशान भी होती हैं. हस्बैंड डजंट एग्री, आई नो हस्बैंड डजंट एग्री. क्या करेंगे? जो जो द वन हु इज इन पावर, द वन हु